Hello and welcome back. This time we'll be studying sales and production budget. So up till this point we have seen sales budget in certain questions, we have seen production budget in certain questions. This time we'll be making both sales and production budget. Slowly we are moving towards the master budget, because what is master budget? Master budget is nothing but accumulation of all different budgets. So what we are doing is we are studying one budget at a time, one kind of budget, one functional budget at a time, and as we combine all those budgets, it becomes a master budget. So till this point we have studied sales and production budgets, and now we'll combine those two budgets. For example, let us have a look at this question. I'll see from here, you can see here. A manufacturing company submits the following figures for the first quarter of 2010. We have data for first quarter of 2010, January, February, March, for product X, Y and Z. 25, 20, 30, 30, 25, 35, 10, 10, 10. These are the figures for X, Y and Z for Jan, Feb and March of 2010. Selling price per unit is 10, 20 and 40 for X, Y and Z respectively. Target for first quarter of 2011. Now, the data that we see over here is for January, February and March of 2010. We need to make a budget for 2011. The target for 2011 first quarter. Same periods, January, February, March. 2010 is given. Targets for 2011 are given. What are those targets? Sales quantity is expected to increase by 20, 10% and 10% respectively. Sales price, nothing for X, but Y and Z are expected to go up by 10% and 25%. Then also stock position, opening stock position in January 2011. Opening stock position in January 2011 is given. Stock position on 1st January 2011. Percent of sales, percent of January 2011 sales. So whatever sales are finally decided for January 2011, 50% of it should be my opening stock. 50% in each case. 50% in X, 50% in Y, 50% of Z. What is this amount? Stock position on 1st Jan 2011. Percent of January 2011 sales. So 2011 में जितनी भी हमारी सेल्स होने वाली हैं उसका 50% हम चाहते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ हो. स्टॉक पोजीशन 31 मार्च 2011 को 20,000, 25,000, 5,000 इतना हम चाहते हैं कि हम कैरी करके रखें कि जब ये मंथ खत्म हो, कि जब जनवरी खत्म 31 मार्च खत्म हो रहा है तो हमारे पास एक्स, वाई एंड जी के अंदर कितना होना चाहिए? 20,000, 25,000 और 5,000 स्टॉक में पड़ा हुआ होना चाहिए. स्टॉक पोजीशन एंड ऑफ जनवरी एंड फरवरी, परसेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ सेल्स. जनवरी और फरवरी की जो हमारी स्टॉक पोजीशन होगी वो क्या होगी? जो सब्सिक्वेंट मंथ है उसका 50% हम कैरी करना चाहते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2011. शो वर्किंग्स क्लियरली. तो अपने को सेल्स भी बनाना है, प्रोडक्शन भी बनाना है. अब ऐसे केसेस में जब दोनों पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? सेल्स बजट बनेगा, और फिर उस सेल्स बजट से डिराइव होता हुआ कि सेल्स में कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है, उसकी कंसिडरेशंस करते हुए फिर हम कहाँ जाते हैं? आगे प्रोडक्शन बजट पर चलते हैं. सो विल स्टार्ट विद आवर सेल्स बजट. यू हैव योर क्वेश्चन ओवर हियर. मेरे को यहां से देखना होगा, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लिख लेंगे. नाउ लेट अस गेट ऑन विद आवर बजट. किस तरह का हम बना सकते हैं सेल्स बजट? तो सिंपल हो सकता है, जैसी हमारे को टेबल यहां दिख रही है वैसा ही हम बना सकते हैं. तो विल मेक अ टेबल ओवर हियर एंड देन विल स्टार्ट विद आवर बजट. सो हियर इज आवर फर्स्ट टेबल एंड हियर विल बी मेकिंग अ sales budget for quarter 1 of 2011. So we'll be preparing a sales budget for first quarter of 2011.
Fine. And then what is the information? We can see that we have product X, Y and Z, and then there are 3 months. So let me have months over here. Months, and here we can have product X, product Y and product Z. So these are my 3 products, and then I see that we have 3 months, January, February and March. January, February and March. Fine. So for my sake, what I'll do is I'll write down these values over here in rough. You need not write, because you will be having the question over here, you will be having the question in your hand, question paper. I'll write down these over here: 25,000, 30,000 and 10,000. $35,000, then there is 10,000 and 10,000. Selling price is 10, 20 and 40. January, February, March for X, Y and Z. Selling price is 10, 20 and 40. Sales quantity to increase by sales 20%, 10% and 10%. And selling price to go up by 10% and 25%. Then remaining information is stock position, opening position, closing position. This will be helpful in production budget. For sales budget, all we need is this information. Now, look at this. Selling price is 10 for X. It remains unchanged. So, selling price, selling price, selling price, selling price, units and sales, units and sales, units and sales. Selling price will remain 10 for X, as there is no increase. So it will remain at 10, 10 and 10. Here we can have our total figures. If you wish, we can make it double. So it will be 10 for each. Then selling price for Y is going up by 10%. So what will be the selling price? Selling price for Y, how much? 20 plus 10%. It is going up by 10%. It is going up, na? Sales price 10% and 25%. Plus 10% of 20, making it 20 plus 2. So selling price for Y would be 22, 22 and 22. Selling price for Z would be 40 plus 25%. Selling price for Z would be rupees 40 plus 25% of 40, making it 40 plus 10. So selling price is jumping to 50. These are the selling prices. What about the quantities, units? 25, 20 and 30 for X. They are going up by 20%. All these quantities are going up by 20%. So 20%
percent of 25 is 5,000. You can put it over here. You can calculate these values over here if you want. 25,000 plus 20%. All these figures will go up by, all these figures are going up by 20%. So 25,000, 20,000 and 30,000. They all are going up by 20%. 20% of 25,000, 20% of 20,000, 20% of 30,000. So this becomes 25,000 and 5,000, making it 30,000. 20,000 plus 20% of this, 4,000, 24,000. Then 30% and 20% of this, making it 6,000, 36,000. So 30,000, 24,000 and 36,000. 30,000, 24,000, 36,000. 5,000, 4,000 and 6,000. 25 and 5, 30, 10. What will be the sales volume? 30,000 into 10, 3 lakh. Then this will be, let us make it this way. Three lakh. This will become 2,40,000. 2,40,000. This will become 3,60,000. And if you add these all, 3 and 3, 6, 6 and 2, 8 and 1, 9 lakh in all. This we can remove. So total for X, total sales for X would be worth rupees 9 lakh in months of January, February and March. Total, now units for Y. How do we find out units for Y? Units for Y. 30,000, 25,000 and sales are going up by 20% in case of X, by 10% in case of Y. 10% of 30,000 would be 3,000, 2,500, 3,500. So I get 33,000. 33,000. Then I get 25 and 27, 500, and last one would be 38,500. 38,500. We'll be needing calculator for these calculations. 33,000 units at rate of 22. 7,26,000. 7,26,000. The next is 27,500 at rate of 22. 6,05,000. 6,05,000. And last one is 38,500 at rate of 22. 8,47,000. This is 21,78,000. 21,78,000. These are the figures for Y. So this is sales budget that we are making. And then what about product Z? Let us remove this. Product Z is also increasing sales by 10%. So it will be 10,000. All are 10,000. And 10% of 10,000 is 1,000. Was the same for all? Yes, it was 10,000. So each will become 11,000. It is 11,000. And then multiplied by 50, it will become
5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, making a total of 5, 10, 15, 16,50,000. So for product X, the total sales budget is worth rupees 9 lakhs. For product Y, it is worth rupees 21,78,000, 16,50,000. If we add complete sales, they come down to plus 16,50,000 plus 9 lakh, 47,28,000, 47,28,000. Now these were the totals for products. If you wish to know what will be my complete sales for January, what are the sales figures for my January revenue, so I can add these values to get January. This was for X, Y and Z. If you wish to know कि जनवरी में कितना बेच पाएंगे हम, तो इनको ऐड कर देते हैं. ये कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15,76,000. ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13,95,000. और लास्ट वन इज 8 और 3 11, 11 और 5 16, 17 10, 17 57, 17,57,000. लेट अस चेक कि ये टोटल्स इतने आ रहे हैं या नहीं. अगर ये आ गए हैं तो बिल्कुल सही है, वी आर ऑन राइट ट्रैक. कितना है, 15,76,000 प्लस 13,95,000 प्लस 17,57,000, 47,28,000. तो ये हुआ हमारा सेल्स बजट. अब ये क्वेश्चन क्या चाहता था हमसे कि हम सेल्स बजट भी बनाएं और प्रोडक्शन बजट भी बनाएं. तो सेल्स बजट तो बन गया है. अब प्रोडक्शन बजट के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, प्रोडक्शन बजट जिसके अंदर आ जाएगा. सो दैट विल बी आवर प्रोडक्शन बजट. तो पहले यहाँ पर टेबल बनाते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर प्रोडक्शन बजट. ठीक है. तो हियर इज आवर टेबल. और इस टेबल के अंदर अब हम बना देते हैं अपना प्रोडक्शन बजट. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो ऊपर वाली टेबल को बंद कर देते हैं. है ना. और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, नाउ दिस वाज सेल्स बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, नाउ आई हैव प्रोडक्शन बजट for first quarter of 2011. और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक बार वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं मेरे लिए लिख लेता हूँ जिससे कि हम यहाँ से क्वेश्चन कर सकें. वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, टारगेट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, सेल्स इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज. फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टॉक पोजीशन ऑन 1 जनवरी. 1 जनवरी को क्या स्टॉक पोजीशन चाहिए हर एक के अंदर, 50% ऑफ जनवरी सेल्स, 50% ऑफ जनवरी सेल्स. कि जनवरी में जो भी आप एक्स वाई एंड जी में सेल करने वाले हो उसका 50% ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए. स्टॉक पोजीशन ऑन 31 मार्च कितनी हो जाएगी, ये ओपनिंग हो गया एक तरह से, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, दैट इज 31 मार्च का कितना है, 20,000, 25,000 एंड 5,000. 20,000, 25,000 एंड 5,000. तो हमारे पास ओपनिंग आ चुका है, क्लोजिंग आ चुका है, स्टॉक पोजीशन एंड जनवरी एंड फरवरी. तो ये तो 1 जनवरी को सबका ओपनिंग आ गया, 31 को सबका क्लोजिंग आ गया. लेकिन बीच में जो हमारा क्लोजिंग ओपनिंग होगा, दैट इज 1 फरवरी को क्या होगा, 1 मार्च को क्या होगा, वो कितना है, स्टॉक पोजीशन एंड ऑफ जनवरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी
एंड फेब्रुअरी, ये तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी क्या है? 50% ऑफ सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, 50% ऑफ सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। ये तीन इंफॉर्मेशन एक बार फिर से टैली कर लेते हैं। स्टॉक पोजीशन ऑन 1 जनवरी, परसेंट ऑफ जनवरी 2011 सेल्स, जो भी आपकी जनवरी 2011 की सेल्स आई हैं, ये रही जनवरी 2011 की सेल्स। तो इन सेल्स का कितना चाहिए हमारे को? 50% चाहिएगा। और फिर है स्टॉक पोजीशन ऑन 31 मार्च, वो तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 20,000, 25,000, 5,000, परसेंट में नहीं है। स्टॉक पोजीशन एट एंड ऑफ जनवरी एंड फरवरी कितना चाहिए? 50% ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ की सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे को टोटल्स भी चाहिएंगे, तो टोटल्स जो हैं वो हम इस तरह से लगा लेते हैं। इसका तो टोटल हम क्या कर देते हैं, 30, 60, 90,000 एट रेट ऑफ 10 हो गया। 2178 था ना ये, इक्कीस 78, ये कितनी थी? 30, 60, 80, 95, 96,000। देख लें एक बार 96,000 याद आया क्या? 33,000 प्लस 27,500 प्लस 38,500, 99,000। और ये लास्ट वाले का कितना है? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं, बिकॉज विल बी नीडिंग दीज टोटल नंबर्स। 16,50,000। ये कहाँ चाहिएंगे? जब हम यहाँ पे ओपनिंग्स बनाएंगे, जब क्लोजिंग्स बनाएंगे, तो हमारे को ये वाले फिगर्स चाहिएंगे। नाउ ये टेबल हमारी तैयार हुई हुई है, इसके अंदर हम एंट्रीज करनी शुरू कर देते हैं। प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2011, तो यहाँ पे तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y, प्रोडक्ट Z। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी, फरवरी, अच्छा ये चाहिएंगे नहीं, सॉरी, जनवरी, फरवरी एंड, इनकी एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी 90,000, 33,000 की। इन एनी केस हमने निकाल लिया है। नाउ व्हाट इज़ द आइडिया? हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, क्या होता है कि हमारे को जो इस महीने की सेल्स है उसमें हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, और लेस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि जितनी सेल्स इस बार चाहिए, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको 20 यूनिट्स की सेल्स करनी है, आपके पास ऐसा लगता है कि जो आपका फोरकास्ट है, जो डिमांड है, वो 20 यूनिट बेच देगा, और आप चाहते हो कि 5 यूनिट मेरे पास भी रह जाए क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसका मतलब मेरे को कितनी यूनिट प्लान करनी होगी? 20 तो जो मैं बेचने वाला हूँ और 5 जो मेरे पास रह जाएगी। तो इसका मतलब 20 तो जो मैं बेचने वाला हूँ और 5 जो मेरे पास रह जाएगी। तो मेरे को कितना प्लान करना है? 25 यूनिट का प्लान करना है। फिर कोई जो ना दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि नहीं 25 का प्लान मत करो, 2 यूनिट पहले से पड़ी हुई है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर 2 का पड़ा हुआ है तो हम कितना करेंगे? 25 माइनस 2 दैट इज 23 यूनिट्स का प्लान कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन अभी भी चलने वाली है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वो जो प्रीवियस लेक्चर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, तो आप C2Q4 चैप्टर 2 नहीं C3Q4 सॉरी चैप्टर 3 क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा। हाँ ये चैप्टर 3 है, तो C3Q4 देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर से। चैप्टर 3 क्वेश्चन 4 जो भी है उसके अंदर हमने ये निकाल रखा है कि किस तरह से ये वाली चीज़ें इंक्लूड करनी है। फॉर नाउ विल जस्ट कैलकुलेट एंड इंक्लूड देम। अब अगर हम देखें x का जनवरी का कितना है? 30,000 है,
ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 50% ऑफ जनवरी सेल्स, 50% ऑफ जनवरी सेल्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। तो 30,000 बेचने का जब हमारे को चांस लग रहा है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक नहीं, अभी तो पहले तो हम ये निकालते हैं, क्या क्या कर देते हैं, सेल्स, और फिर यहां पे लगा देंगे लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इधर आ जाएगा टोटल, और फिर हम कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, और यहां आ जाएगा बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है, सो जनवरी की सेल्स लिख दें सबसे पहले। तो इन सब की सेल्स, जनवरी एक्स की कितनी कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड है, 30,000, 24,000, 36,000। वाई की कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड है, ये रही 33,000, 27,500, 38,500। और प्रोडक्ट जी की कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स हैं, 11,000, 11,000, 11,000। तो ये तो मेरे को सेल्स बजट से पता पड़ गया कि मैं कितना कितना बेच लूंगा। तो पहला जो हमारा सेल्स का टारगेट है वो तो यहां से आ गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक, हम कितना क्लोजिंग स्टॉक चाहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जनवरी और फरवरी में कितना चाहते हैं, 50% ऑफ सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, अगले महीने जो सेल्स हो रही है उसका क्लोजिंग स्टॉक मैं यहीं पे चाहता हूं। और 31 मार्च को हम क्या चाहते हैं, 20,000, 25,000, 5,000। पहली बात, जनवरी में आप क्लोजिंग स्टॉक क्या चाहते हो, जो फरवरी की सेल्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी एंड फरवरी विल बी 50% ऑफ सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, अगले महीने की जो सेल्स हैं उसका 50% मैं आज क्लोजिंग चाहता हूं। तो जनवरी फरवरी के क्लोजिंग ये रहे, मार्च का क्लोजिंग ये रहा। ओपनिंग पे जब अपन पहुंचेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट। फॉर नाउ जनवरी का क्लोजिंग कितना होगा, जो फरवरी की सेल्स है उसका हाफ, दैट इज 12,000। फरवरी का कितना होगा, सब्सिक्वेंट मतलब मार्च की जो सेल्स है उसका हाफ। और इसी तरह से यहां आ जाए तो 27,500 का हाफ कितना हो जाएगा, 13,500, 13,750। और यहां आ जाएगा 19,250। ठीक है ना। और इधर अगर आओगे तो आपको क्या आ जाएगा, 5,500, 5,000। कैसे आए ये सब फिगर्स, 24,000 का हाफ आ गया 12,000, 36,000 का हाफ, मतलब मार्च में 36,000 की सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, 50% ऑफ सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। मार्च में हम 36,000 की सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो 18,000 का क्लोजिंग होना चाहिए फरवरी में। पिछले महीने जब क्लोज करेंगे तो अगले महीने का आधा आज बना के रखेंगे, 24 का हो गया 12। इसी तरह से यहाँ फरवरी में 27,500 चाहिए तो 13,750। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट वाई, 38,500 का हाफ हो गया 19,250 एंड सो ऑन। मार्च का हमारे को वैसे ही डायरेक्ट फिगर दिया हुआ है, कितना है, 20, 25 और 5,000। 20,000, 25,000 एंड 5,000। तो अभी हमने क्या समझा था कि मेरे को कितनी यूनिट्स बेचनी है, 20। क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहता हूं मैं, 5। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। इसका मतलब मेरे को इस मंथ में टारगेट कितना रखना है, 25 का, कि 20 में बेच दूंगा, 5 में अपने पास रखूंगा, 25 का टारगेट। बट फिर कुछ ओपनिंग भी होगा, जितना भी ओपनिंग है वो इसमें से कम कर देना कि मेरे को तो 25 चाहिए, लेकिन अगर 2 पहले से पड़ी हैं तो मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ये सब्ट्रैक्शन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले तो ये देखेंगे टोटल हमारे को कितना प्लान करके चलना है। वो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को टोटल कर लें, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। और अगर अभी भी कह रहा हूं ये समझ में नहीं आया तो यू कैन चेक आउट C3Q4, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने यही बनाए थे। तो अब यहां पे ये कितना हो गया, 30 और 12, 42,000 का हमारा टोटल चाहिए। 24 और 8, 32, 42,000 का हमारे को फिर से टोटल चाहिए। 56,000 का हमारे को टोटल चाहिए। यहाँ कितना चाहिएगा, 33 एंड 13, 46, 750। ये हो जाएगा 19, 27 और 9, 36, 46, 750, 46, 750। और ये हो जाएगा आपका 38 एंड 5, 43, 63, 500।
11 और 5 16 500, 11 और 5 16 500, 11 और 5 16, ये कितना आएगा, अच्छा ये 5000 दिया हुआ है, सॉरी, ये हो जाएगा 16000 पूरा। फाइन। अब इट इज़ रिकमेंडेड कि ये क्वेश्चंस जब हम कर रहे हैं तो आप भी इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर करते जाएं, अपने आप ये बजट्स बनाएं, क्योंकि होता ही है कि यहाँ देख रहे हैं तो ये नंबर्स आ रहे हैं, बट खुद टेबल बनाते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए ये नंबर्स। फॉर नाउ इन एनी केस यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि मेरे को 20 चाहिए, 5 का क्लोजिंग भी चाहता हूँ तो टोटल 25, लेकिन जो पहले से पड़ा है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। पहले से क्या पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, कितना पड़ा है 1 जनवरी को, कितना पड़ा है 50% ऑफ जनवरी सेल्स, जो भी जनवरी की सेल्स हैं उसका 50% मेरे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 50% ऑफ जनवरी सेल्स, जनवरी सेल्स 30,000 की है तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 15,000। 33,000 की जनवरी की सेल्स हैं तो ये कितना हो गया 16,500। 11,000 है तो ये कितना हो गया 5,500। ये तो हमारे ओपनिंग स्टॉक्स हो गए जनवरी के। फरवरी का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, फरवरी का ओपनिंग स्टॉक वो होगा जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक था। जनवरी में 31 जनवरी को जो हमने क्लोज किया वो 1 फरवरी को ओपनिंग बन जाएगा। 31 जनवरी को क्लोज किया है 12,000 किया है, तो ये जो क्लोजिंग है ये 12,000 कहाँ जा रहा है, फरवरी का ओपनिंग बनने जा रहा है। फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ जा रहा है, नाउ सी जनवरी के तो हमारे को पहले से दिए हुए थे तो हमने फिल कर दिए, लेकिन आगे जो है वो एक रिपल इफेक्ट चल रहा है कि जो पिछले महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग बनेगा। नाउ जनवरी का क्लोजिंग है 13,750, सॉरी 13,750, 19,250, 5,500 एंड ये वाला 5,500 वापस से यहाँ आ गया। जो क्लोजिंग था फरवरी का क्लोजिंग 5,500 जो मार्च का ओपनिंग बन गया। नाउ हम यहाँ तक तो आ गए थे, अब जो भी ओपनिंग है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को बजटेड प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ये रहा टोटल, इसमें से ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 42 माइनस 15 37 27, ये हमारा प्रोडक्शन बजट है। ये हमारा सेल्स बजट था, ये हमारा प्रोडक्शन बजट है। प्रोडक्ट एक्स जनवरी में कितना बनाना है आपको, 27,000 बनाना है। 27,000 आप बनाओगे, 15,000 पहले से पड़ा है, टोटल 42,000 हो जाएगा। उस 42 में से 30,000 बिकने वाला है, हम 30 बेच देंगे और हमारे पास बच क्या जाएगा 12,000 का क्लोजिंग बच जाएगा, जो कि अगले महीने का हाफ होना चाहिए। अगले महीने 24,000 की डिमांड है, तो ये वो मैजिकल फिगर है जिस पे प्रोडक्शन होगा। ये आया कहाँ से है, ये इस सेल्स फिगर से आया। ये सेल्स फिगर्स कहाँ से आए हैं, जो पिछले साल का हमारे को बजट दिया हुआ ये रहा। इस पिछले साल के बजट में हमारे को कुछ चेंजेस दिए गए थे, जो मैं यहाँ पे ये रहे, तो पिछले साल की सेल्स दी हुई है, कुछ चेंजेस हैं। किस तरह से दिए गए थे हमारे को चेंजेस, कि सेलिंग प्राइस कितनी रहने वाली है, सेल्स क्वांटिटी कितनी चेंज होने वाली है, इस तरह से हमारे को कुछ चेंजेस दिए हुए थे। तो वी हैड आवर सेल्स बजट एंड हियर वी आर गेटिंग आवर प्रोडक्शन बजट। अब यहाँ पे 42 में से 12,000, टोटल 42,000 चाहिए, 12 पहले से पड़ा है, कितना हो गया 30,000। 56 में से 18 पहले से पड़ा है, 38,000। इधर हो जाएगा आपका 250, 46 में से 16 गया तो 30, 000, 33, 250, 63, 54, 44, ये हो जाएगा 16 में से 5 गया 11,000, 11,000 और ये हो गया 10,500। ये हुआ हमारा बजटेड प्रोडक्शन। तो अगर कोई जना कहता है कि सेल्स बजट कहाँ है, तो ये पड़ा हमारा सेल्स बजट मल्टीप्लाइड बाय रेट्स, हमारे को मिल गया कि टोटल सेल्स किस रेवेन्यू कितना होने वाला है। तो दीज आर सेल्स इन यूनिट्स, दीज आर सेल्स इन रुपीस। ये रहे हमारे टोटल सेल्स ऑफ इन रुपीस। तो फर्स्ट क्वार्टर में आई एक्सपेक्ट कि 47,28,000, 47,28,000 की मेरी सेल्स हो जाएंगी इन रुपीस। उनमें से यस अलग अलग होंगी। एक्स कितना बिक जाएगा इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च मिला के 90,000। वाई कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 99,000। जेड कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 33,000। अब ये इतना मैं बना पाऊँ
ये बेच पाऊँ, इसके लिए मुझे ये बनाना होगा। तो ये रहा हमारा प्रोडक्शन बजट। अब अगर हम इसको टोटल करके एक बार रिप्रेजेंट करना चाहें कि एक्स कितना बनाना होगा, तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कितने चाहिएंगे। ये कितना है, 27, 57, 87, 95,000। टोटल एक्स कितना बनाना पड़ेगा हमें, 95,000। वाई की अगर बात करते हैं, 30, 33, 63, 63, 107, 500, 1,07,500। ये कितना बनाना पड़ेगा, 33,000, 32,500। तो ये रहा हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल। जनवरी में इतना चाहिएगा, फरवरी में इतना चाहिएगा, मार्च में इतना प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्ट वाई की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च का प्रोडक्शन। प्रोडक्ट जी की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च का प्रोडक्शन। और अगर टोटल देखना चाहते हो आप क्वार्टर वाइज, तो क्वार्टर का इतना इतना प्रोडक्शन चाहिएगा। लेट मी टेल यू द रिजल्ट्स। 95,000, 107,500, 32,500, करेक्ट। सो दिस वाज आवर सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट फॉर द गिवन डेटा। ये कुछ नहीं है, ये तो अपना रफ कैलकुलेशन के लिए था, समझने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा C3Q5 चैप्टर 3 क्वेश्चन 5। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट्स में हमने सेल्स से शुरू किया था, फिर प्रोडक्शन पे गए थे, और अब सेल्स और प्रोडक्शन दोनों बना डाले। इसी तरह से धीरे धीरे होते होते हम मास्टर बजट तक भी पहुंच जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। Until we meet again, do take care. Thanks for watching. Bye bye.